फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाने का जो ये था credit है, that should go to the 44th Amendment Act, okay, not to the 42nd. It was the 44th Amendment Act which finally changed the right to property from a fundamental right to a legal right, okay. So second statement would be wrong. 42nd Amendment Act was not responsible for this, so we'll go with only statement A is correct, okay. Question number 5, we need to go with question number 5, okay. Which of the following pairs is mismatched? इसमें से कौन सा pair mismatched है? Article 14 right to equality, Article 18 abolition of untouchability, Article 25 freedom of profession and practice of religion, Article 21A right to education. कौन सा mismatched है? गलत कौन सा है इसमें से? People, this is basic का ये बहुत simple question है, ये सबसे simple question है. Correct, absolutely correct. Aslan and Ojas both correct. Okay, Article 18. Article 18 is abolition of titles. Article 17 is abolition of untouchability. Everything else works. Okay, this is correct. Obviously, B option is wrong. Okay, sixth question. The Statement 1. The Supreme Court can issue a writ anywhere within the territory of India, and उसका सट्टा है. किसका वो आर्टिकल्स का सट्टा है आपके पास? मैं तो मैंने इतनी दफा पढ़ा है उसको कि आई कैन ओनली गो विद दैट. Ojas, can you share that satta with everyone? I'd like everyone to remember. I need not remember them like that, but the kids might want to do that. Acha, tomorrow we'll share the satta tomorrow. Share it on your group, no problem, that's fine, as long as everyone gets the satta. The Supreme Court can issue a writ anywhere in the territory of India, and the High Court can issue a writ for violation of both fundamental. Thank you, Arslan. बिल्कुल सही, absolutely correct. The answer is correct. Both statements are correct. Okay, दोनों statements सही है. Supreme Court जो है वो within the territory of India कहीं भी anywhere within the territory of India writ issue कर सकता है. Okay, वो जितने भी रिट्स होते हैं अपने पास उसमें से वो कहीं भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रिट इशू कर सकते हैं. वेयर हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट इशू कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स इशू कर सकता है. ओके, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हर छोटी बड़ी चीज के लिए रिट इशू नहीं करता है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए करता है. हाई कोर्ट कैन डू दैट फॉर बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, लेकिन उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो होता है वो कम होता है, बिकॉज इट इज ओनली अप टू व्हिचएवर स्टेट or union territory they are responsible for. The High Court is responsible for. Okay, so both statements are correct. Question number 7. Which of the following writs is issued to prevent legal usurpation of a public office by a person? Habeas corpus, quo warranto, mandamus, prohibition. No. कोई इंसान किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठकर ऐसी चीजें कर रहा है जो करने का उनको ऐसे डिसीजन सुना रहा है या ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो करने सरकारी एक्शंस जो करने का उनका अधिकार नहीं है. इलीगल यूजरपेशन, जितना उनका अधिकार है उससे कई ज्यादा बढ़कर उनके एक्शंस है. ऐसे वाले इंसान को रोकने के लिए जो रिट गवर्नमेंट कोर्ट इशू करता है टू दैट गवर्नमेंट ऑफिस, टू और दैट पर्सन, दैट पब्लिक ऑफिस, इज कॉल्ड एज quo warranto. By quo warranto का मतलब होता है by what warrant, by what authority have you done this. Okay, so that's correct. Mandamus इसलिए नहीं है. Mandamus क्या होता है ना, mandamus command होता है कि अपना जो भी आपका जो भी काम है उस पब्लिक ऑफिस का या उस गवर्नमेंट ऑफिस का जो भी काम है वो काम करो, डू योर जॉब. ये किसी पब्लिक ऑफिस को बताना, जब कोर्ट को बताना होता है तो देन मैंडमस का रिट इशू किया जाता है. ओके, मैंडमस इज अ कमांड. तो कमांड क्यों करते हैं कोई किसी को, लाइक व्हाई वुड यू कमांड समवन कि डू दिस थिंग यार, डू योर जॉब, है ना. तो जो भी उनका लीगल ड्यूटी है उस ऑफिस का, वो जब उस ऑफिस को करने के लिए कहा जाता है तो देन उसके लिए मैंडमस का रिट लगता है. प्रोहिबिशन मतलब जो कर रहे हो उसको बंद करो, वॉट एवर यू आर डूइंग प्रेजेंटली. एंड मैंडमस प्रोहिबिशन जो होता है, सॉरी नॉट मैंडमस, प्रोहिबिशन जो होता है वो सिर्फ जुडिशियल या सेमी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ऑफिस के लिए चलेगा.
Whereas quo warranto works for any public office, किसी भी public office के लिए, judicial, administrative, executive, any sort of office. Okay, it just has to be a government office. That's all. Again, अच्छा सारी differences वापस बताऊँ आपको. Give me a moment. मैं ना sorry, 1 minute. I'm at the wrong place. See, that is why ना I don't भैया पेपर मुझसे सॉल्व करवा कर कहीं चले गए, राइट? मैं सुन रहा, तू क्या बोल रही? सुन रहा मैं. ओके, यू वर नॉट देयर ना, तो मैं सोच रही थी भैया. अच्छा, ओके, तो मैंने मैं देखो म्यूट किया था, म्यूट करके है ना, कान में देख. को बता दे, कान में देख. अच्छा, कान में कॉर्ड लगाया, दिख रहा, कैमरा दिख रहा. हाँ भैया, हाँ, सॉरी माय बैड. मैंने सोचा आप चले गए. ओके, देखो देख. ठीक है. Okay, so see, this works like this. चैट बॉक्स में देख रहा, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है. चैट आपको आया होगा. काउंटर के बारे में. किसके बारे में? पता नहीं. हाँ, वो कल्याणन के बारे में लिखा. कल्याणन. करेक्ट. वो सबसे यंगेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने. जी. ये सब आना चाहिए बच्चे लोग तुमको. ये मैंडेमस, हाबियस कॉर्पस, सर्टोरियरी, क्यू वारंटो, ये वर्ड्स कहाँ से डाले? कौन से लैंग्वेज से डाले? लैटिन भैया, लैटिन. अरे ये हैबियस कॉर्पस, वो देख सो गया, उठा उसको. नहीं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोरियरी, क्यू वारंटो कहाँ से डाले? लैटिन भैया. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी. हेबियस कॉर्पस का एक्चुअल मतलब होता है टू हैव अ बॉडी. तो अगर किसी इंसान को डिटेन कर दिया हो, अरेस्ट कर दिया हो, एंड उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया हो, नॉर्मली इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड, ही और शी शुड बी प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट, एंड उनका मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए ये इनका क्राइम है, इस क्राइम के लिए उनको अरेस्ट किया है. देन मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है इनको कस्टडी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, व्हाटएवर, ऐसे बिल होनी चाहिए उनकी, व्हाटएवर. तो ये वाला प्रोसीजर होता है. अगर ये प्रोसीजर नहीं हुआ होगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम, थैंक यू वेरी मच, तो अगर ये वाला प्रोसीजर नहीं हुआ होगा तो फिर हेबियस कॉर्पस जो होता है उसका रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वंस दैट रिट कम्स इनटू प्ले, तो देन द पुलिस हैव टू प्रेजेंट दैट अरेस्टेड पर्सन, द डिटेन्ड पर्सन, to a magistrate, to a proper magistrate within 24 hours excluding the traveling time. Okay, 24 घंटे के अंदर उनको प्रेजेंट करना है to a magistrate. This is what habeas corpus is. Once again, ये illegal detention के खिलाफ है. Unlawful detention, अब किसी को पुलिस ब्रुटैलिटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ब्रुटैलिटी की बात करते हैं, तो ऐसा अगर गवर्नमेंट किसी को जानबूझ के या पुलिस किसी को जानबूझ के उठा के लेके गई हो, क्राइम नहीं हो उसका, तो फिर हेबियस कॉर्पस के रिट्स के लिए अप्लाई करते हैं. मैंडेमस मतलब, मैंडेमस का रिट होता है कि वी कमांड, मतलब कोर्ट कमांड करता है. अब कोर्ट क्या कमांड कर रहा है कि डू योर जॉब. अब कौन सा जॉब है? तो इट शुड बी, वो किसी भी क्वासी पब्लिक या क्वासी पब्लिक बॉडी के लिए चलता है, मतलब एनी गवर्नमेंट ऑफिस. उस अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस उनका दिया हुआ काम नहीं कर रहा है, ओके, इफ दैट गवर्नमेंट ऑफिस इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स लीगल ड्यूटी, तो फिर कोर्ट का ऑर्डर होता है मैंडेमस का कि डू योर जॉब रे, जस्ट डू व्हाटएवर योर जॉब इज ना, जो आपका सही वाला जॉब है वो परफॉर्म कीजिए. ओके, मैंडेमस का रिट अक्सर बहुत आसानी से यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है इस रिट के लिए, लेकिन कोर्ट बहुत आसानी से रिट इशू नहीं करता है. ओके, प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब किसी को रोकना. तो वंस अगेन इट कमांड्स इन एक्टिविटी कि जो कोई ऑफिस उस जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी ने जो कोई ऑर्डर दिया है या जो कुछ कहा है, जो भी जजमेंट सुनाया है, उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन रोक देना, बराबर बीचों बीच रोक देना. while the proceedings are pending, उस प्रोसीडिंग को बंद कर देना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिशन. मीनवाइल अगर कुछ अभी फाइनली किसी जुडिशियल बॉडी ने कुछ गलत बोल दिया है, ओके, मतलब आइदर इट्स एन एरर ऑफ लॉ, और उन्होंने अपने अधिकार से ज्यादा, जो उनका हक है या अधिकार है उस ऑफिस का, उससे बढ़कर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जजमेंट सुनाया है. ओके, तो फिर सम रॉन्ग हैज बीन डन, कुछ तो गलत हो गया है, राइट? तो उस रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए जो रिट इशू किया जाता है, सर्टियोरारी, वो सर्टियोरारी का रिट होता है. ओके, एंड लास्टली एक को वारंटो होता है, जो वंस अगेन को वारंटो एंड मैंडेमस दोनों पब्लिक एंड क्वासी पब्लिक बॉडीज के लिए चलते हैं. और प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी जो होता है वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए होता है. ओके, ट्राई टू रिमेंबर दिस कनेक्शन. तो को वारंटो वंस अगेन इलीगल यूजरपेशन के लिए, कि किस हक से किया, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्शन, ये पूछा जाता है उस पब्लिक ऑफिस से. ओके, ठीक है.
All right. ये this. Okay. चलेगा. So quo warranto is your answer. 7 का आंसर B होना चाहिए. Okay. Which of the following is not enlisted as a directive principle in the Indian Constitution? Indian Constitution में इसमें से कौन सी चीज directive principles में नहीं है, as a directive principle नहीं है? To be informed what is going on. ये it's a, हाँ, in a way. Okay. आप मुझे अभी भी directly message कर रहे हैं people. I think you are allowed to message me. You are allowed to do this to everyone, I believe. Which of the following is not enlisted as a directive principle? To organize village panchayats and enable to function them as units of self-government, to promote and improve the environment and to safeguard forests and wildlife, to promote international peace and security, and to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. No. ठीक से बताइए, ठीक से सोचिए, इसमें से कौन सा चीज है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि यार आप लोग व्हेन यू आर इन पावर, तो फिर ये वाले प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करके लॉज बनाने हैं, लेजिस्लेट करना है, पॉलिसीज बनाने हैं, गवर्न करना है. दीज आर द प्रिंसिपल्स यू नीड टू फॉलो. ये गाइडलाइंस है आपके. ओके. व्हाट अमंग दीज इज व्हाट इज नॉट क्लियर? माय वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट? तो पीपल, कैन यू हियर मी? No, guys, can you not hear me? People? Hello? नहीं सुन रहे मैम. सुन रहे हैं. I'm audible. Okay. ठीक है, चलेगा, no problem. To organize village panchayats and to enable them as functions of enable them to function as units of self-government. This is very much a directive principle. Okay, so ये directive principle है. To protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife, ये भी एक directive principle है. To promote international peace and security. Thank you people for answering me now. To promote international peace and security is also मरेगा तो आएगा, मर के जाएगा. तो वो जब जाएगा ना, मैं ले जाएगा तेरे साथ में. तेरे को अटैक विटैक आया ना, मैं लेके जाता तेरे को. हॉस्टल में थोड़ी आएगा मैं. लेक्चर में बैठ. To cherish and follow the करना. उधर जा तो लेक्चर में बैठ. yes. सर आप म्यूट कर दो ना आपको. करना. It's a fundamental duty. मैं कर देती हूँ. अच्छा, हो गया वो. Okay, no problem. ये fundamental duty है. To cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom is a fundamental duty. Okay, वो directive principle नहीं है. ये जिस तरह से मैंने arrange किया है ना, directive principle के बीच में fundamental duty या fundamental right या ये this is one of the most favorite questions of what do you say, UPSC का एक बहुत favorite तरीका होता है चीजों को identify करने का. तो what UPSC does is वो directive principles, fundamental rights, fundamental duties को सब कुछ मिक्स मैच कर देता है एंड एक साथ डाल देता है. एंड वो 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. इसलिए एक बार ठीक से पढ़वाया था आपको. ओके, मैंने आई थिंक फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सीधा हमने बैरक से पढ़ा था एक बार. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने जवाब दिया है उसका? Okay, let me see. Which of the following in the Indian Constitution is considered? Yes, correct. Minaj is correct. Which of the following in the Indian Constitution is considered justiciable? इसमें से justiciable क्या है? Justiciable concept कौन सा है इसमें से? Yes, that is true. Fundamental rights. Fundamental rights is included in the as a justiciable thing. That is absolutely correct. मैं क्या नहीं हूँ, सॉरी, नोट्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं. मैं 12th न्यू में नहीं हूँ. सेंड कर दो ना कि आप वो 12th से न्यू ग्रुप पे नहीं. मैं शुभम सर को बताती हूँ, वो सेंड कर देंगे. भैया doesn't appreciate me sending notes personally to kids because then I'll have to do this with every other kid ना, तो फिर वो सही नहीं होगा, तो इसीलिए ग्रुप पे डलवाते हैं. शुभम भैया को बोला था कि नहीं डाला मैंने. अरे मैंने जितने नोट्स अब तक अपलोड किए वो सारे वो मैं कम से कम 5 या 6 ग्रुप्स पे अपलोड करती हूँ.
So I don't know if I don't know which name this is now, but I'm pretty sure जितना भी मुझको 12th या NDA related दिखता है मैं हर उस ग्रुप पे अपलोड करती फिरती हूँ. So if I'm a part of that, हमारे ग्रुप पे एक भी नहीं आया अब तक. अच्छा, I'll add myself to that group. I'll ask Shubham sir to add me to that group, and then I'll add notes to that. ठीक है? Whatever I've taught so far, I'll add those notes. Okay. ठीक है. What is that now? 12th new. 12th new का कोई group है. Okay. Which of the following Supreme Court judgments introduced the concept of basic structure of the Indian Constitution? इसमें से कौन सा जजमेंट था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स. एंड यार रिमेंबर कौन सा किसके स्टेट, लाइक कौन सी स्टेट या कौन से लाइक यूनियन के अगेंस्ट था ऐसे. सज्जन सिंह इज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस state of Kerala, and Minerva Mills versus Union of India. आप मुझे जवाब दे रहे केशवानंद भारती. Yes, 10th का आंसर C है. It's केशवानंद भारती. केशवानंद भारती was the that judgment 1973 की केस थी जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. So the judgment went like you can amend the Indian Constitution, the Parliament can amend the Indian Constitution, but the Parliament cannot change the basic structure of the Constitution. उसको amend नहीं कर सकते. तो basic structure में multiple key points है that you can't change. Heavily alter नहीं कर सकते. Which one of the following statements about fundamental rights is incorrect? The concept of fundamental rights was borrowed from the American Constitution. Fundamental rights are available only to the citizens of India and not to foreigners on Indian soil. Fundamental rights stand suspended during the proclamation of national emergency, and fundamental rights may be amended by the Parliament of India. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गलत कौन सा स्टेटमेंट है? मैं बता देती हूँ, ये वाला. This one is the wrong statement. Okay, fundamental rights जो होते हैं वो सिर्फ citizens के लिए अवेलेबल नहीं होते, वो foreigners के लिए भी अवेलेबल है. लेकिन there are those fundamental rights 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ citizens के लिए अवेलेबल होते हैं. Okay, बाकी fundamental rights हम सबके लिए सबको देते हैं कि चलो यार you are equal before the court of law, या फिर आपको भी आपको भी titles नहीं मानने पड़ेंगे foreigners को, या फिर even your life and liberty shall be protected. You are allowed to profess your whichever religion you want and all, है ना. मैं लिखवा के देती हूँ कि citizens के लिए कौन से fundamental rights होते हैं. Just 15 that is no discrimination. 16 public employment में no discrimination. 19 सारे फ्रीडम्स जो है अपने 6 फ्रीडम्स जो अवेलेबल होते हैं, कहीं भी आओ जाओ बोलो, एसोसिएशंस फॉर्म करो, है ना, ट्रैवल करो, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करो. 29 एंड 30 ये एजुकेशन एंड रिलीजन को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो ये जो 5 राइट्स है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ये एलियंस को मतलब फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं होते. ओके, सो दैट्स द थिंग. And fundamental rights do stand suspended during the proclamation of an emergency. Ma'am, what is Article 29? What is 29 and 30? Yes. No. Okay, no problem. हम लोग ये वाला protection of interest of minorities, that is Article 29. मतलब कि कोई भी distinct language या culture या script होगा तो उसका preservation करना, conservation करना. And Article 30 is like minorities are allowed to establish and administer educational institutions. Because once again, that is trying to conserve, the particular language or the particular script or culture. No? So, उनको minorities को ये होता है, right होता है establish करने का and administer करने का educational institutions को. That's how it works. Okay, तो ये 29 and 30. अब ये this is clear, this right, like ये बहुत major right होता है, तो ये हम aliens को नहीं देते, अपने educational institutions establish करने का हक. Okay. All right. What about 18? 18 is abolition of titles, right? वो सबके लिए है.
See, it will be so funny ना कि अगर हम बोलेंगे कि हम किसी को राजा या महाराजा नहीं बुलाते. I am a citizen of India, तो मैं किसी को राजा या महाराजा नहीं बुलाती हूँ. But I have a South African friend. If she visits me, तो she will have to call some local guy राजा और महाराजा. ऐसा नहीं चलेगा ना. अगर वो राजा महाराजा इंडिया में नहीं है, तो वो ना मेरे लिए है ना मेरी साउथ अफ्रीकन फ्रेंड के लिए है. It's same for everyone. That's what it means. So 18 abolition of titles applies to everyone. That person doesn't have a title to say within the state of India, the territorial boundary of India. Okay, ठीक है. Okay, no, this one. हाँ, डॉक्टर्स चलता है ना. डॉक्टर ये टाइटल, ये वो एकेडमिक टाइटल्स चलते हैं, एकेडमिक टाइटल्स चलते हैं. दैट इज ओके यार. मैंने इसके ऊपर ये भी डिस्कशन किया था आपको कि हम कोई फॉरेन नेशन से भी टाइटल्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते. कितना बड़ा डिस्कशन हुआ था. आई टोल्ड यू आल्सो कि सचिन तेंदुलकर को वो नाइटहुड देना था किसी को. वी वर डिस्कसिंग सचिन तेंदुलकर को नाइटहुड क्यों नहीं देते. हम बोल रहे थे कि यार सच अ इलस्ट्रियस करियर इन क्रिकेट एंड वी डोंट, नोबडी ऑफर्ड हिम अ नाइटहुड. ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ नाइटहुड. ही कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सर सचिन तेंदुलकर as long as he wants to be an Indian citizen. He simply cannot do that. Nobody can accept foreign titles. Foreign titles भी नहीं accept कर सकते. Okay, ठीक है. इंडियन पासपोर्ट जब तक कैरी करते हो तब तक नहीं कर सकते. ओके, सो एंड ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है हमने. वहाँ पे इट इज नोन एज बिल ऑफ राइट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट एंड एवरीथिंग. सो वो सब कुछ वी डेफिनेटली हैव दैट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेफिनेटली एंड इट कैन बी सर्टेनली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अभी डिस्कस किया ना कि अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते. ओके, दैट्स द लॉजिक. All right. Which of the following parts in the Indian Constitution resembles the Instrument of Instructions in the Government of India? Instrument of Instructions in the Government of India Act 1935. नहीं, DPSP हमने आयरलैंड से लिया था. बताइए बाबा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिजेंबल करता है इन द गवर्नमेंट ऑफ. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस माने क्या? गाइडलाइंस ये है. हमारे यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज होता है जो गाइडलाइंस को रिजेंबल करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ मिलते हैं हमको? पार्ट 4. दिस इज ये 2 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछा है आपको. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट है एंड विच कॉन्सेप्ट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो अपने यहाँ पे जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट वाज सिंपली अ वे ऑफ टेलिंग द गवर्नमेंट कि उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए उनके. वैसा ही एक कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से बोरो किया, which was called as the directive principles of state policy, and that is included in part 4 of the Indian Constitution. What is part 1? Let's discuss. Part 1 क्या है? Union and its territory, है ना? Union and its territory. Part 3 क्या था? Fundamental rights. Part 3 is fundamental rights. Part 2 is citizenship. Okay, and part 4 is obviously DPSP and DPSP. Okay, and part 4A was fundamental duties. Okay, parts का सट्टा है क्या? हमारे यहाँ पे शेड्यूल्स का सट्टा है. Who among the following, question number 30, parts का भी सेट. ओजस आप ना एक काम कीजिएगा, since you have parts का सट्टा and that इसका सट्टा आपके पास वो fundamental rights का भी है ना, make a list of all those sattas and then just share it with everyone so that DPSP का भी है. Where are you getting all these sattas from? Share it with the class. I'll be more happy to see those sattas. Okay. Question number 30. Who among the following served as the temporary president of the Constituent Assembly? Dr. Sachidanand Sinha, Acharya J.B. Kripalani, Nawab Muhammad Khan Jogazai, और Sir B.N. Rao. इसमें से कौन? हाँ जी, बिल्कुल सही. Dr. Sachidanand Sinha. Okay, he was the oldest member of the assembly, so he was the temporary president of the Constituent Assembly. तो उन्होंने उनके स्पीच से हमने Constituent Assembly को शुरू किया था. Incidentally, he didn't read out his speech. I think Sir B.N. Rao did. So that was what it is. Okay. And I think Acharya Kripalani had introduced him.
Okay, question number 14, statement 1. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. And statement 2 says the Constitution of India originally contained 395 articles, 22 parts, and 10 schedules. B is तो wrong, absolutely correct. B तो बिल्कुल गलत है, ये problem है. This is the problem. 8 schedules होने चाहिए थे. Originally 8 schedules. Okay. Was the Constitution of India adopted on 26 January? No. What did we do on 26 January? Sign किया था, enact किया था. Okay. Enact किया था, sign किया था. लेकिन we did not adopt the Constitution on 26 जनवरी को हमने एनफोर्स किया था. आई एम सॉरी, हमने एनैक्ट एंड अडॉप्ट इसको 26 नवंबर 1949 में किया था. ओके, इट वाज adopted and enacted on 26 November 1949. Okay, and enforced on 26 January 1950. All right. Okay, so both statements are incorrect. दोनों statements गलत है. Okay, चलेगा. Next question. Question number 50. The preamble of the Indian Constitution is based on Objectives Resolution, Nehru Report, Instrument of Accession, or Government of India Act 1947. इसमें से कौन सी चीज पे preamble based है इंडिया का? हाँ, सही है, बिल्कुल सही. Objectives Resolution. Objectives Resolution was presented 2 days after the first meeting, that is on 11th November 1949 by Jawaharlal Nehru. उन्होंने present किया था ये बताने के लिए कि what are our aims and objectives in making the Indian Constitution. तो वो सब कुछ present किया था, and उसका एक थोड़ा सा modified version would be considered the preamble of the Indian Constitution. Okay. नेहरू रिपोर्ट के ऊपर हमने ना हमारा we wanted नेहरू रिपोर्ट was how we wish to make the Constitution of India and everything. ऐसे वो way back in 1928 करवाया था हमने. वहां से हमने वहां पे कुछ fundamental rights भी mention किए थे हमने. So Nehru report is also considered a predecessor of our fundamental rights. Okay. Instrument of accession is that instrument, rather that legal papers. That was the legal papers जो साइन किए जाते थे between the Indian government of India after independence, जो हमारा गवर्नमेंट था ना, तो उनके बीच में एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो भी ये हुआ डील हो गया of joining India, that was called as the instrument of accession. Okay, Government of India Act 1947 जिसने clearly बताया कि 2 states होंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, and that is like how that whole thing will go down. तो वो सब कुछ was Government of India Act 1947. Okay, which of the following states, question number 16, which of the following statements about the Indian Constitution is incorrect? Indian Constitution is the lengthiest written constitution. It borrows the ideals of liberty, equality, and fraternity, the preamble from the French Constitution. Process of amending the Constitution is considered more flexible than rigid, and the Constitution proposes diarchy in the central government only. No, rethink your answer. चलो, lengthiest written constitution, agreed. Okay, hands down. Ma'am, C is also correct. And C is also correct. The process of amending the constitution is considered more flexible than rigid because obviously हमारे यहाँ पे like just 2/3 majority लगता है आपको of present and voting people and simple majority otherwise. तो दोनों conditions satisfy कर लो. That is true. It borrows the ideals of liberty, equality in the preamble from the French Constitution. This is the problem. सिर्फ central government में diarchy नहीं है. अपने यहाँ पे diarchy का मतलब क्या होता है? Dual rule. मतलब वो federal principles वाला scheme है. So you have a distribution of power, both executive and legislative, on not only between center and states, but also between state and local government. So diarchy आपको provincial basis पे भी मिलता है. Okay, so it is not provincial basis पे मतलब state basis पे भी different states में भी diarchy दिखाई देता है कि you will see like municipal corporations के बीच में and panchayats and government के state government के बीच में भी distribution of powers है. तो diarchy is not just in central government. So this would be wrong. ये वाला statement गलत होगा. Okay, 16 का option D है.
That is incorrect about the Indian Constitution. हमारे यहाँ पे एक दो शेड्यूल्स है, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12, which is dedicated to how the distribution of powers between a state and a municipal urban local government, and distribution of powers between a state and a rural local government. So clearly diarchy works everywhere within all levels of India, administration in India. Okay. Question number 17. Statement 1. India has a federal polity. Statement 2 says India can transform itself into a unitary state during a national emergency. हाँ जी ओजस बोलिए, शेड्यूल का सट्टा क्या है? ओल्ड टीयर्स ऑफ पीएम, ऐसा कुछ सट्टा है उसका, शेड्यूल्स का सट्टा ओल्ड टीयर्स ऑफ पीएम ऐसा कुछ, या टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सॉरी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, दैट्स द सट्टा. ओके, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 बताइए. Statement 1 is India has a federal polity. Yes, India does have a federal polity. Okay. है ना, अभी अभी डिस्कस किया हमने. इंडिया इज अ प्रॉपर, काफी फेडरल है नेचर में इंडिया. इंडिया यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, क्लियरली स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में भी है, सो डेफिनेटली फेडरल है. ओके. इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ यूनिटरी स्टेट. यस, फेडरेशन स्टेट के बड़े सारे ये जो होते हैं स्टेट, इट बिकम्स वेरी यूनिटरी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़ा सारा पावर आ जाता है. ऑल पावर बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, व्हिच I think is a practical way of going about things. जब कंट्री यार पीपल नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है जब इंडिया इज एट वॉर और when the union government is under serious threat, okay, or other government, the nation is under serious threat. उस टाइम पे you don't want to fight, you know, आपको internal conflict नहीं चाहिए. That is why India becoming a unitary state is a practical solution to that whole issue. तो दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 says, which of the following statements regarding the Indian polity is correct? Yeah, okay. India is a federation of states. The first schedule of the constitution lists the names of all states and union territories. A component state in India can secede as long as the state legislature passes a resolution to that effect. And the union government cannot reorganize a state without a ratification from the concerned state legislature. करेक्ट कौन सा होगा इसमें से? करेक्ट क्या है? Article 1 of our constitution says India, that is Bharat, is a union of states. तो उसको हम किसी भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहीं भी उसको फेडरेशन करके नहीं रेफर किया है. Okay, nowhere have we referred to India as a federation of states. We see it is federal in character, but and we have a federal polity, sure, but India is not a federation. India का definition ऐसा नहीं हो सकता है कि India is a federation of states. Please remember this. जैसे India is a union of states. Okay, we have a federal character. We do have a, you know, like how do you say? हम federation on a principle basis पे believe करते हैं. Federation का मतलब होता है a coming together of states, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर जैसे स्विट्जरलैंड है. इट्स अ फेडरेशन, इट्स अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ फेडरेशन. कनाडा भी फेडरेशन है, बट हम खुद को जैसे, बट कनाडा इज प्रीटी मच मोर यूनिटरी देन व्हाट इंडिया इज, लाइक क्लियरली एब्सोल्युटली. ओके. ऑन द अदर हैंड फेडरेशन का मतलब होता है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स के डेफिनेशन में कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. हमारे यहाँ पे फेडरल स्टेट्स को ऐसे वाला प्रिविलेज नहीं है, इंडिस्ट्रक्टिबल वगैरह होने का प्रिविलेज नहीं है. फेडरेशन एंड यूनियन बोथ वुड मीन कि बोथ डू नॉट रियली अलाउ सेसेशन, मतलब छोड़ के नहीं जा सकता कोई स्टेट उस फेडरेशन को या यूनियन को. लेकिन फेडरेशन में बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं एज अपोज टू यूनियन. इंडिविजुअल स्टेट्स को ना बहुत ज्यादा पावर्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं एज अपोज टू अ यूनियन. दैट इज व्हाट इट वुड बी. तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. एकदम सही है ये. ओके. कॉम्पोनेंट स्टेट ऑफ इंडिया सेसीड नहीं कर सकता है, किसी भी हाल में सेसीड नहीं कर सकता है. नो स्टेट इन इंडिया इज सिंपली अलाउड टू अप एंड लीव कि
बोर हो गया या फिर नहीं करना है या ये यूनियन पसंद नहीं है एनीमोर, ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता है. नो कॉम्पोनेंट स्टेट इन इंडिया कैन secede. Okay, no, whatever the state legislature says, no component state in India can secede from the state. Okay, so ये statement गलत है. Secession allowed नहीं अपने यहाँ पे. The union government cannot reorganize a state without ratification from the concerned state legislature. ये नहीं है. The union government can reorganize a state, meaning alter their boundaries, diminish, change the name of the state, कम ज़्यादा करो area state का, delimitation of constituencies कराओ, कुछ भी करा सकता है union government to a state without even asking for the permission of the state. Okay, this is not how federations work, but we can do this. India, I told you, right? There is a very nice definition that Basu gives, Didi Basu. It says कि India is a federation with a unitary bias, and that is a very good way of describing the Indian polity. कि we are a federation, but we have a very unitary tendency. Okay, union को importance देने का tendency है, predilection. Anyways, which province in India was the first to be reorganized on a linguistic basis? मुझे question पसंद है. See, thank you Ashish. Answer नहीं है वो सही, लेकिन this is the reason why I had posed the question. Question को ठीक से पढ़िए. इंडिया का जो reorganization का history है ना, linguistic basis पे reorganize करने का states को, उसको देख लीजिएगा. अभी इंडिया में मैंने पूछा है कौन सा province, state भी नहीं बोला मैंने उसको. Okay, mark the words also. I am probably just being a little more crafty and bad to you guys, but honestly, seriously, mark the keywords. The question is, which province in India was first to be reorganized on a linguistic basis? It is going to be Orissa. There is, I think, उनका नाम Madhusudan Das था. I don't know, just recheck the person. उन्होंने ना, this happened way back in 1936. और तो वो जितना भी वो बंगाल प्रोविंस था ना, उसमें से ओडिशा प्रोविंस को सेपरेट आउट कर दिया on the basis of all those people who spoke Oriya. Okay, so this was the first time that India में किसी भी province को linguistic basis पे reorganize किया था. And then you come to Andhra in 1953. फिर 1953 में आंध्रा में reorganize किया. इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी linguistic basis पे reorganize करने को तैयार नहीं था, बट आंध्रा में वो क्या नाम बताया उनका, रामलू somebody थे ना, कोई रामलू करके कोई थे ना, तो वो जो थे he died. तो अच्छा, you had answered C क्या? Okay, तो he died in a, like, he was वो protest कर रहे थे, and उस चक्कर में वो he was on a what do you say, पोषण कर रहे थे वो, तो उस चक्कर में फिर he passed away, and then the government had to agree for Andhra. फिर उसके बाद हमने एक proper states reorganization act लाया, and then we आंध्र प्रदेश बनाया. हमने पहले एक आंध्र province बनाया था, then हमने उसको एक proper आंध्र प्रदेश का state बनाया, then केरला का state बना 56 में, and then Maharashtra in 1960. Okay, so that's how the process goes. तो please याद रखिएगा, here if you are asking about a province and आपको specify नहीं किया गया है कि independent India या pre-independent or post-independence period, या फिर before the states reorganization commission or after the, कुछ भी ऐसा time limit नहीं दिया होगा, तो Orissa is going to be the first province that was reorganized on a linguistic basis. ठीक है? Okay, question number 20. Which of the following is most recently formed state or union territory in India? Telangana, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Ladakh. इसमें से and you will have to remember because Jammu and Kashmir and Ladakh were formed at the same time. तो बताइए कि मतलब सेम डे पे हुआ था ना वो, तो आपको बताना है सिर्फ कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है. तो बताइए, चलो. Tell me, rather वो छोड़िए, just tell me which one was the last one that was formed, either state or union territory. Anji, is somebody answering me? No? Okay. This happened way back in 2014. These two happened in 2019.
This happened in 2020. ये सबसे recent है. Okay. People, you have to remember this. Question number 21. Which of the following fundamental rights is exclusively available only to the citizens of India? सिर्फ citizens of India को available है ऐसा वाला right कौन सा है इसमें से? अभी डिक्लेयर किया कि ये 5 राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन, हाँ वेरी करेक्ट, थैंक यू, ये 5 राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं. सो इट्स आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 होता है जो 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. An overseas citizen of India card holder enjoys all civil and political rights in India, and India allows for dual citizenship only for persons of Indian origin. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है? Okay, overseas citizen of India card holder जो है वो he or she will enjoy all civil and political rights in India. अच्छा, आपने पहले बोला है सेकंड तो बिल्कुल गलत है. दैट्स ट्रू बिकॉज इंडिया किसी भी हाल में किसी भी केस में डुअल सिटीजनशिप के लिए अलाउ नहीं करता है. ओके, दैट इज सर्टेनली रॉन्ग. तो वो नहीं चलेगा आपने यहाँ पे. दैट्स ट्रू. एंड इंडियन ओवरसीज सिटीजन जो होता है वो भी कोई सिटीजन नहीं है. सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ सिटीजन एंजॉय करते हैं. तो ये वाला बंदा, ये जो कोई ओवरसीज सिटीजन है वो भी नहीं कर सकते. एक बार ओवरसीज हो गए का मतलब आप इंडिया के सिटीजन नहीं है. सो यू कैन नॉट एंजॉय दैट, राइट? तो आप सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं एंजॉय कर सकते. आपको बस एक परमानेंट वीजा मिल जाता है इंडिया में अंदर बाहर करने का. दैट इज ऑल दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर गेट्स. ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. we'll just go with that. 22 का आंसर डी है. 23. which among the following, हाँ जी बोलिए, ऑप्शन ए का क्या है? 22 के लिए ऑप्शन ए. मैम वो एक मतलब वापस से रिपीट करो ना. अच्छा, स्टेटमेंट 1. श्योर श्योर. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, दैट इज सिंपली अ पर्सन, लाइक कोई नायरोबी में जाके बैठ गए हैं, वहां के सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनके जो खुद या रादर दे आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. आइदर दे आर इंडियंस देमसेल्व्स, मतलब वो इंडियन सिटीजन रहे होंगे एंड देन दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस. यू नो, लाइक फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इंडियंस ऐसे, या उनके मॉम डैड इंडियन ओरिजिन के थे and you know Indians थे and they shifted over here to some other foreign country and then they stayed over there and वहाँ की citizenship मिल गई है. Overseas citizens of India वो लोग होते हैं जो who are citizens of some other nation but who are of Indian origin, जो Indian origin के हैं, किसी और देश में जाकर बस गए हैं. तो फिर उनको एक kind of ऐसा permanent visa मिल जाता है इंडिया में अंदर बाहर करने का by using this card. Otherwise इस कंट्री पे आने के लिए वीजा लगता है, राइट, उनको इंडिया में वापस आने के लिए. लेकिन अब अभी अगर उनके सारे रिलेटिव्स यहाँ होंगे वगैरह एंड एवरी सब कुछ होगा तो फिर ये मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज व्हाई वो काइंड ऑफ परमानेंट वीजा दे देते हैं उनको विद दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. एंड लेकिन उनको सिटीजनशिप के राइट्स नहीं है. अपने यहाँ जैसे सारे राइट्स होते हैं ना सिटीजन्स को. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अलाउड टू वोट. दिस पोर पर्सन वोंट बी अलाउड टू वोट. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, he won't be allowed to vote because he is not a citizen of this country. ठीक है? Okay. Question number 23. Which among the following countries allows for dual nationality among its citizens? India, Pakistan, China, Nepal. I'm happy with this question. So you tell me if you can answer it. मैंने सोचा नहीं था. आप मुझे ये आंसर किसका दे रहे? 22nd का या 23rd का? Sorry, I can see an answer, but I can't see the time at which you posted the answer. 23rd का ऑप्शन नहीं देंगे. चलो, let's rule out people जो we know for sure कि 2 countries है इसमें से जो dual nationality के लिए allow नहीं करते. India and China. Very, very specifically known for not allowing dual nationality among its citizens. Okay, अब बचा आपके पास पाकिस्तान और नेपाल. अब उसमें से ऐसा कौन सा कंट्री है जो dual nationality के लिए अलाउ करता है? इसीलिए टीवी देखना चाहिए.
It's Pakistan. Pakistan allows for dual nationality. Nepal also does not allow for dual nationality. So ये जो तीनों countries है, India, China, Nepal, they do not allow for dual nationality, but Pakistan does allow dual nationality. हर nation के साथ ही it allows for specific nations. Okay, तो जहाँ पर उनके expat population ज़्यादा होगा ना, तो उन expat population मतलब expatriates, meaning people who have left the country and gone to some other place. Okay. So ऐसा वाला पॉपुलेशन उनका जहाँ पे ज्यादा होगा तो उन कंट्रीज के साथ यूजुअली पाकिस्तान अलाउज फॉर डुअल नेशनलिटी. सो आई थिंक इट्स मुझे ये याद है कि यूके के साथ अलाउ करता है, बिकॉज यूके भी अलाउ करता है कुछ सर्टेन कंट्रीज को. देयर आर सम 21 कंट्रीज दैट पाकिस्तान अलाउज, और 16 और समथिंग, ऐसे कुछ नंबर के कंट्रीज है जिनके साथ पाकिस्तान डुअल नेशनलिटी अलाउ करता है. सो व्हेन अ कंट्री अलाउज फॉर डुअल नेशनलिटी डजंट मीन वो किसी भी नेशन के साथ अलाउ करता है. ओके, पाकिस्तान कैन नेवर अलाउ अ डुअल नेशनलिटी विद इंडिया. Please remember, we don't share that sort of a cordial relationship for Pakistan to allow dual nationality with India. And India itself doesn't allow dual nationality, so it has to be a country which will allow dual nationality. UK allow karta hai. I think Australia also allows for dual nationality. US nahi allow karta. You can't be a citizen of US and some other country, can you? It allows dual nationality within itself. I don't think you're allowed to have. Yeah, I need to check up on US. I don't think you're allowed. But there are multiple people who can have different passports. I know Switzerland also allows a dual nationality. But okay, ठीक है, तो वो तो फेडरेशन ही है, so वो बहुत cool है वैसे. A foreigner married to an Indian citizen, question number 24, can acquire Indian citizenship by descent, by marriage, by registration, or by naturalization. ये एक और फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का. यू नीड टू रिमेम्बर कि जो कोई बाहर का सिटीजन होगा वो किसी some foreigner, if he or she gets married to an Indian citizen, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का एक्चुअल प्रॉपर लीगल प्रोसीजर क्या है विद इन द सिटीजन अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉज ऑफ 1955. by descent, by marriage, by registration, or by naturalization. बाय डिसेंट मतलब इट्स ओके, मैं अभी एक्सप्लेन ही करने वाली थी. बाय डिसेंट का मतलब होता है डिसेंट एज इन व्हाटएवर ब्लड यू हैव, लाइक आपका एंसेस्ट्री जैसा है उस हिसाब से. सो बाय डिसेंट यू कैन अप्लाई फॉर एन इंडियन सिटीजनशिप इफ either of your parents or either of your grandparents have been Indian citizens. अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें से अगर कोई बंदा या बंदी होंगे जिनको इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर एन इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट. वो जल्दी मिल जाती है, फटाक से मिल जाती है. ओके, बाय मैरिज नाम का कोई स्कीम नहीं होता है. देयर इज नथिंग लाइक इंडियन सिटीजनशिप बाय मैरिज. ओके, इफ यू आर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, if some foreigner is married to an Indian citizen, then that person can apply for Indian citizenship by the principle of registration. Okay, ये वाला, this is the thing, that's your answer. Registration के method से आप you can register. हमने how you register for an exam or for a college or school or like that, to registration, you register yourself कि I wish to apply for a citizenship. These are my credentials. I've lived here for the last 5 or 7 years or whatever, जो भी requisite time होगा, and then I wish to become an Indian citizenship. तो उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. Naturalization का मतलब okay, okay, whoever 1 2 3 4 is, yaar, whoever you are, first off change your name and become a normal person. You are allowed to rename yourself, so please जो भी आपका नाम है वो नाम express कीजिएगा. And secondly and most importantly, keep yourself muted please, unless bhaiya is trying to talk through that. करेक्ट. एंड नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान इतने दिन इंडिया में रहा है या फिर इतना उनको हमदर्दी है इंडिया से, हमदर्दी एज इन they have established a bond sort of with India, कि it feels natural for that person to just belong to India and be a citizen of India. Naturalization. So there has to be a deep connection, like regarding work or some sort of academic work, professional jobs वगैरह, ऐसे सब कुछ अगर बहुत साल इंडिया में रहे हैं and so on so forth, then उस प्रिंसिपल के बेसिस पे you can apply on the principle of naturalization. ठीक है, तो that's what happens. Okay, next one.
Question number 25. A citizen of India may not be deprived of their citizenship if a citizen is married to a foreign national, citizen has obtained the citizenship by fraud, citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, or if the citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during war. May not be deprived. मतलब उनका सिटीजनशिप इस बेसिस पे उनसे छीन नहीं सकते, किसी का भी सिटीजनशिप मिनिमम बेसिस इस बेसिस पे, सिर्फ इस बेसिस पे उनसे छीन नहीं सकते if that person is married to a foreign national or has obtained the citizenship. Let's examine, okay? इसमें से क्रिमिनल क्या लगता है आपको? ये फ्रॉड से सिटीजनशिप एक्वायर करना, ये बोलना कि मेरा नाम ABCD है जबकि मेरा नाम XYZ है ना? दिस इज फ्रॉड. या फिर you know where I came from या what my intentions of acquiring the citizenship are, इसमें झूठ बोलना, that is citizenship by fraud, right? So this is criminal, yeah. You can't, if somebody acquires a citizenship by fraud, he or she cannot be allowed to continue with that citizenship, right? तो ये इस बेसिस पे तो definitely deprive हो रहा है आपका. Deprive मतलब छीन लिया जाता है आपसे कोई चीज, okay? You lose that thing. तो वो जो deprivation है, that certainly happens by if the citizenship is acquired by fraud. If the citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, yeah, it doesn't make sense. If you can't respect the Constitution of the country, no business being the citizen, right? That also makes sense. The citizen has unlawfully traded or communicated with enemy. This is treason. This is proper treason. ये इसको क्या कहते हैं? इन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गद्दारी है, ये गद्दारी है, ये देश के खिलाफ गद्दारी है. टू अनलॉफुली ट्रेड और कम्युनिकेट विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ये गद्दारी होता है. ओके, सो ये तीनों चीजों में क्लियरली यू आर गोइंग टू लूज द सिटीजनशिप. ओके, जो भी लोग ये तीन चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट पर्सन इज लायबल टू लूजिंग द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री. बट इफ अ पर्सन, एन इंडियन सिटीजन इज मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल, एंड इफ दैट पर्सन डज नॉट अप्लाई फॉर अ फॉरेन नेशनैलिटी, तो वो अपनी सिटीजनशिप मेंटेन कर सकते हैं. वो हस्बैंड एंड वाइफ देख लेंगे मैरिज कैसे चलाना है, हमको परेशान होने की क्या जरूरत है. एज लॉन्ग एज द इंडियन सिटीजन डज नॉट अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप, ही और शी विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द सिटीजनशिप. उनकी सिटीजनशिप नहीं जाती, इस बेसिस पे नहीं जा सकती. अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो ही और शी माइट सिंपली लूज द सिटीजनशिप. डिप्राइव तो नहीं होगी. डिप्राइव इज जबरदस्ती से छीन लिया जाता है आपका सिटीजनशिप. ओके, ठीक है. ओके, वी आर डन. अगर आप ये खुद से अटेम्प्ट करें तो और भी बेहतर होगा, बिकॉज अभी ज्योग्राफी तो नहीं कराएंगे. अभी आई विल गो बैक टू माय क्लाइमेटोलॉजी थिंग ना. नाइस पेपर ना, थैंक यू. ओके, यू डू सेंड ऑल दोस थिंग्स ओजस टू द ग्रुप, जितने भी आपके सट्टे हैं, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ सट्टा फॉर दैट दिस से. ओह, थैंक यू आशीष, थैंक यू. Yeah, as long as you people found this informative, I'm happy. Question paper session informative. I know you. आपका बस चले तो आप बस question answers ही discuss करो. It's interesting like that. But concept पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद discuss करते हैं, ठीक है? So this is what we were discussing. Atmosphere में अभी हम ना सबसे पहले structure and composition of atmosphere पढ़ते हैं. Simple सी चीज होती है. Let's try to understand what the atmosphere is. Okay? Atmosphere is nothing but a thin blanket of gases. Okay? जो हमारी अर्थ को कवर करता है. So it is like this. If this is the earth, ये अर्थ गोल है, तो उसके अराउंड जो ये थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ना, पतला सा थिन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, दैट इज द एटमॉस्फेयर. ओके, ये वो एटमॉस्फेयर है अपना. ऑलराइट, नाउ व्हाई इज इट इन प्लेस, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर इन दैट प्लेस? बिकॉज इट इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. ओके, वो जो सारा एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटी की वजह से ये कर रहे हैं. व्हाट डू यू से, लाइक ग्रेविटी इज होल्डिंग ऑन टू इट. ओके, एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? यस, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग. मैं आई थिंक आई डिक्लेयर ऑन ग्रुप्स. जब मैं इंडिया शुरू करूंगी ना, तो मैं ग्रुप पे डिक्लेयर कर दूंगी. तो जिनको इंडिया सीखना है वो तब आ जाइए. अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी पहले हुआ होगा ना, तो बिफोर स्टार्टिंग विद मेजर टॉपिक्स मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि आई एम बिगनिंग विद इंडिया फिजिकल, आई एम बिगनिंग विद इंडिया इकोनॉमिक, और आई एम बिगनिंग विद वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो वो मैं डिक्लेयर कर दूंगी. तो यू गाइस कम ओवर. ओके, थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उस दिन से मैं PYQ. हाँ, करेक्ट. अरे माय प्लान इज कि मैं 28th 29 आई एम गिविंग माई सेल्फ अंटिल 30th March. Until 30th March I should finish all theory, and then we'll just start with the PYQs from that day onwards. तो फिर 80 minutes में तो काफी कुछ हो जाता है. ओके,
ठीक है, back to business. Okay, so this is the blanket of gases that is held together by the gravity. Okay, it is kept in place by gravity. अब ये gases कौन से होते हैं अपने पास? नाइट्रोजन. अब ये this is बराबर according to the proportion. Okay, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा proportion में है, then oxygen, then argon, then carbon dioxide, neon, helium, krypton, xenon, hydrogen, water vapor, ozone, etc. Okay, ये सब कुछ होता है, ये सारे gases included है, and these are all important for the survival of human beings. Okay, नाउ ओजोन जो होता है, हर एक गैस को क्वालिटी कंसिडर करते हैं, तो ओजोन जो होता है ना, दैट कीप्स आउट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ओके, सो वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक्स्ट्रा यूवी रेज अगर अपने पास आ गए, एक्स्ट्रा क्या कैसा क्या, यूवी रेज विल जस्ट हार्मफुल. ओके, स्कैरी हार्मफुल होते हैं. वाटर वेपर का क्या टेंडेंसी होता है? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, दे आर नोन टू बी फेमसली, ओजोन ऑल्सो फॉर दैट मैटर, बट ओजोन ट्रोपोस्फेयर में नहीं है तो हमको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है वो फिलहाल. वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, या फेमसली ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होते हैं, सपोज दिस इज द ग्रीन हाउस गैस. ओके, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सन की तरफ से जो रेडिएशन आता है, मैं उसको येलो बना रही हूँ. ओके, दिख रहा है क्या आपको येलो कलर का? ओके, सो सन की तरफ से जो रेडिएशन आता है, दिस इज द सन. ओके, तो सन की तरफ से जो रेडिएशन आता है, वो उसको अलाउ करते हैं टू गो थ्रू इटसेल्फ. ओके, मतलब ये अभी रेडिएशन पास कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, नीचे होते हैं अपना, तो अर्थ की तरफ ये रेडिएशन पास करते हैं and it allows that radiation to go upwards. Okay, meanwhile earth का radiation जो है वो ये radiation long wave radiation होता है. Okay, लॉन्ग वेव रेडिएशन का एनर्जी उतना ज्यादा नहीं होता है. ऑलराइट, सो उसकी वजह से ना क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैस बोलता है सॉरी कैन नॉट पास. तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, वो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन का जितना भी एनर्जी है ना, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है उसको सबको अपने आप में, लाइक इट डज नॉट अलाउ इट टू पास, राइट, इट डज नॉट अलाउ इट टू गो बैक टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो वो सारा हीट जो होता है वो एक्यूमुलेट करके रख देता है ग्रीन हाउस गैसेस. दैट इज व्हाट द ग्रीन हाउस गैसेस डू, दे विल एक्यूमुलेट दैट हीट एंड कीप इट विद इन इटसेल्फ. ओके, तो उसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर, दैट इज 15 degrees Celsius as opposed to -18. If we did not have this atmosphere and the greenhouse gases to keep all that heat, cocooned within itself, तो हमारा अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेल्सियस होता. क्योंकि जितना हीट अर्थ का टेंडेंस क्या है कि जो भी हीट वो रिसीव करता है ना, वो उसको वापस भेज देता है बैक अगेन टू द एटमॉस्फेयर. ओके, थैंकफुली ये ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट, थोड़ी सी हीट को रिटेन कर लेते हैं एंड अर्थ का टेम्परेचर लिवेबल है, तो दिस सपोर्ट्स लाइफ. -18 डिग्री सेल्सियस पे पता नहीं क्या लाइफ सपोर्ट कर पाते हैं हम लोग. ओके, देन नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर के बारे में एक चीज और याद रखना जरूरी है, ये ना एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है. तो अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो यू विल नॉट फाइंड अ मेजॉरिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन जो होंगे ना, वो मिसिंग होंगे आपके लाइफ में से. ओके, लाइक प्रेसिपिटेशन नहीं है, या फिर क्लाउड्स नहीं बन रहे, ऑब्वियसली ये साइक्लोन वाइक्लोन वाला चक्कर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. नथिंग इज हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर इफ वाटर वेपर इज नॉट अराउंड. ओके, सो वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत जरूरी होता है. वाटर वेपर को लेकर एक और चीज समझ लीजिएगा कि वाटर वेपर डिक्रीजेस पोलवर्ड्स. जैसे आप इक्वेटर टू पोल जाते हैं ना, सपोज दिस इज द अर्थ. ओके, दिस इज द इक्वेटर. ओके, तो इक्वेटर से लेके पोल जाते जाते वाटर वेपर डिक्रीज होता है, वाटर वेपर डिक्रीजेस. इक्वेटर पे वाटर वेपर सबसे ज्यादा होगा, देन आप ट्रॉपिक्स में जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, सब ट्रॉपिक रीजन में और भी कम, टेम्परेट रीजन में और भी कम, एंड पोल्स में तो लाइक इट्स वेरी एरिड. पोल्स में एरिडिटी बहुत ज्यादा होता है. ओके, बिकॉज नो वाटर वेपर, कहाँ से वाटर वेपर पैदा करेंगे? So clearly that is the case. Okay, secondly, water vapor जैसे ही upwards आप जाते हैं ना, मतलब अर्थ की सरफेस से upwards altitude में जैसे travel करते हैं, वैसे भी water vapor कम होता है. So if you are closer to the surface of the earth, obviously water vapor के level थोड़े से better होंगे इधर. Okay, closer to the surface of the earth. As in how you go above the surface of the earth, आप जितना ऊपर travel करते हैं, the level of water vapor start falling. Okay, and clearly फिर बहुत ज्यादा water vapor available नहीं होता है जैसे आप ऊपर जाते हैं. So upwards and polewards दोनों तरफ वाटर वेपर रिड्यूस होगा. ओके, प्लीज रिमेंबर. ऑक्सीजन तो खैर जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है. लाइक इफ यू नीड टू सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करना है तो ऑक्सीजन चाहिए होगा. डस्ट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अराउंड दे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. सो वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड दोस, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, द जनरल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस गोज ऑन वेल. ओके,
एंड डस्ट पार्टिकल्स की एक खासियत होती है कि दे विल बी फाउंड मोर इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स देन इन द इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स. ओके, वंस अगेन पोलर रीजन्स में इसलिए नहीं बिकॉज टेम्परेचर ही नहीं है, डस्ट कहाँ से क्या. इक्वेटोरियल रीजन्स में इसलिए नहीं बहुत क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. ओके, सो डस्ट पार्टिकल्स की खासियत है कि वो आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा मिलते हैं. नाइट्रोजन जो सब ट्रॉपिकल मतलब ये वाला पार्ट है, ट्रॉपिक्स के बाहर जो रीजन लाई करता है ना, इमीडिएट बाहर, यहाँ पे ट्रॉपिक्स के बाहर जो रीजन लाई करता है इमीडिएटली आउटसाइड द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल. Temperate would be subtropical is closer to the tropics at least. That's how the term is used. But temperate would be proper away from the tropics, like 45 to 60 वगैरह में temperate बोला गया है. And nitrogen important इसलिए होता है because वो control करता है सारा combustion by diluting the oxygen. लेकिन people just imagine agreed कि oxygen flammable नहीं है, बट यार वो कंपोशन को बहुत सपोर्ट करता है. यू डोंट वांट कि अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो गया तो यू डोंट वांट थिंग्स लाइक जस्ट लाइक एक स्पार्क नहीं आ गया है तो सारा आजू बाजू का हवा जल रहा है वगैरह. यू डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू हैपन, राइट. ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए जो इतना सारा नाइट्रोजन है अपने पास 78% नाइट्रोजन, दैट इज अ गुड थिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग. ऑलराइट, अभी ना मैं आपको ट्रोपोस्फियर एक मिनट में समझा सकती हूँ क्या. मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ, उसका वो सट्टा बता देती हूँ आपको, है ना. आपको वो सट्टा अच्छा लगता है ना, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, दैट्स द सट्टा यू गो विथ, राइट. आप लोगों ने मुझे बताया था, आई डोंट रिमेम्बर हु हैड टोल्ड मी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, दैट वाज योर सट्टा. ओके, नीचे से लेके शुरू करते हैं. एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो होते हैं, सबसे पहला वाला लेयर इज ट्रोपोस्फियर. ओके, सॉरी नॉट ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे पहला वाला लेयर है. ओके, सो दैट इज द ट्रस्ट थिंग. देन जो नहीं यार, ये ट्रस्ट में इन द एग्जाम नहीं, अच्छा ये एसटी उसका है, दिस एसटी इज फॉर दैट. ओके, सो फिर ये स्ट्रेटोस्फियर जो है वो एसटी वाला, हाँ, तो दैट इज द सेकेंड लेयर. स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सेकेंड लेयर होता है. थर्ड लेयर जो है दैट इज मेसोस्फियर. ओके, मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर. देन आता है आपका आइनोस्फियर. ओके, मतलब इट इज इंक्लूडेड विद इन द थर्मोस्फियर, बट दैट इज द वे यू विल रिमेंबर. सो आइनोस्फियर इज द नेक्स्ट वन. फिर थर्मोस्फियर इज द नेक्स्ट लेयर. एंड देन उसके बाद जो 400 किलोमीटर के ऊपर आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्फियर. एक्सोस्फियर मतलब दिस इज आउटर स्पेस. एक्सोस्फियर मतलब आउटर स्पेस होता है. थर्मोस्फियर तक तो हम कम से कम अपना स्पेस समझते हैं, लेकिन एक्सोस्फियर इज आउटर स्पेस. ओके, ठीक है. सो दिस इज द सेट्टा. you'll have to remember earth से closest layer जो होगा that will be troposphere. Then the next layer would be stratosphere. The third layer would be away from the earth would be mesosphere. Then actually it should be thermosphere, but ionosphere पहले encounter करते हैं हम लोग, and then thermosphere. So this is how it works. Remember people, ionosphere is included within the thermosphere. So this is how it works. And lastly you have the exosphere. तो ये वो लेयर्स है. तो आप बेसिकली 5-6 लेयर्स काउंट करते हैं, बिकॉज आइनोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर. ठीक है, कल फटाक से हम सारे लेयर्स करेंगे. कल मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. यू गाइस टेक केयर एंड स्टे सेफ. ओके, बाय बाय. Thank you, ma'am. थैंक यू.